तो आप सभी का बहुत बहुत परमपिता परमात्मा के घर में, आपके घर में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। मुझे याद आ रहा था कि जैसे दुनिया में लोग प्रभु के आगे प्रार्थना करते हैं, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सिमरण करे तो दुख काहे को होए। तो दुख में सिमरण किसको करते हैं? कोई भी प्रकार का दुख आता है, चाहे बीमारी हो या घर की और परिस्थितियां हो, तो एक तो वो परमपिता परमात्मा को याद करता ही है मनुष्य। लेकिन जब कोई बीमारी आती है, शरीर की कोई तकलीफ होती है, तो आप सभी बहुत सौभाग्यशाली हो कि परमपिता परमात्मा को याद करने के साथ हर व्यक्ति डॉक्टर को याद करता है। इसलिए आप लोग अपने लिए ताली बजाओ, आप लोग बहुत भाग्यशाली हो। इसीलिए ही डॉक्टर को नेक्स्ट गॉड कहा जाता है। तो परमपिता परमात्मा जो सर्जनों का सर्जन है, वो आकर के हमारे मन को मजबूत करने का ज्ञान देता है। तो इसीलिए ये जो हमारा विश्वविद्यालय नाम है ना, तो ये केवल विद्यालय नहीं है, विद्यालय के साथ हॉस्पिटल भी है। लेकिन कौन सी हॉस्पिटल है? इसका नाम है रूहानी हॉस्पिटल, यानी आत्मा को ठीक करने की हॉस्पिटल। और आपके हाथ में ऐसे भगवान ने लड्डू दे के रखे हैं, आप इतने अच्छे कर्म करने के आपके पास खुले रास्ते हैं। पेशेंट की दुआ लेते जाओ, दुआ लेते जाओ। कहाँ फ्री सेवा, कहाँ डिस्काउंट, कहाँ क्या, सब जगह सबको सहयोग दो। आपकी दुआएं इतनी जमा होगी कि आप जन्म जन्मांतर के लिए सुखी हो जाएंगे। So I have always seen you in, calm and good composure, very well, balanced personality, and at the same time always keep on working and traveling and writing articles and all those things. So my question to you, tell me, about your schedule. How do you keep, yourself so energetic? Always work and look so young. Ever smiling, yeah. I should thank my doctors to discipline me. Good part of my life and discipline is thanks to all my doctors. Doctors, all my life I have seen all the doctors. Be it Dr. Srikhande Senior, Dr. Goel, his professor under whom he has been trained, Dr. J.C. Suri, who is considered a father of sleep medicine in India. In Safdarjung, he may have shared, he is trained in Safdarjung. I have had very good fortune to have good relationships with everyone. But for me, one quality which every doctor should have is empathy. I mean, you are not in a business. This is not some business. This is the seva which you are doing on behalf of God. We just congratulated you for the 9,000 podcasts and publications. How did you get into this? Quite surprising for me when my team, they informed me. I think I would credit much of it to my teachers here in Brahma Kumaris, who taught me how to think first. Before writing, you need to think right. This all started actually in 2007 when the then head of Brahma Kumaris, Dadi Prakashmani, she left her body. The first thing which I wrote was a obituary in 4 languages for her, which was liked by a lot of people.
And thereon, I think a lot of people, they encourage me that why don't you write. So I just, it's kind of one off that, I will write 2-3 articles, बाकी ठीक है छोड़ देंगे. It started off with 350 words of column in Free Press Journal in Bombay, but I had never thought actually in my wildest dreams that it will go so far. Again, to his question, I would say that my writing has also disciplined me. But I write in 3 categories, that is 400 words, 650 words and 850 words. So when I write, the scratch which I am writing, it is almost more than 2000 words. But then I have to chop a lot of stuff out of that. Now that disciplines you. And that helps you kind of, ration your thoughts. तो हम सब मिलके हम परमात्मा के कहते हैं कि आप सब ये एक आत्मा हो. हम तो हैं एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं. हम तो हैं एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं. परम प्यारे प्रभु पिता को हम तो अतिशय प्यारे हैं. परम प्यारे प्रभु पिता को हम तो अतिशय प्यारे हैं. हम तो हैं एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं. I'm well connected to the organization, starting with 2 people. निकुंज भाई जी, उनसे जब फोन पे बात होती है कम से कम 1 घंटा हमारा निकल जाता है. ऐसा लगता है स्ट्रेस सब दूर हो गया. दीदी माँ जी के पास मुझे आने का सौभाग्य मिलता था एंड हमने जो समय बिताया उनके साथ जब भी आता था, काफ़ी उम्र के हिसाब से बीइंग अ ह्यूमन बॉडी काफ़ी कोमॉर्बिडिटीज थी उनको, बट द वे शी वॉज फेसिंग इट. और मैं देख रहा हूँ इतनी हंस रही हैं. जब हम सेशन हमारा एंड होता था, मैंने एग्जामिन किया, काफ़ी पॉजिटिविटी आती थी यहाँ पे आके. तो आई एम वेरी वेल डीपली कनेक्टेड टू दिस पीपल एंड सो थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर. ऐसा ही एक चीकू सीड था. शी इज 73 year old. आई एम जस्ट चीकू सीड lodged in the right main. Sharp edges, they are almost impacted in the left main bronchus. Lung pura collapse hai, and patient has been coughing for last 10 to 15 days, and airway has become narrowed. So it was, I think, one of the most difficult foreign bodies जो निकाला होगा. 2 forceps मेरे टूट गए. And how to go about? तो ऑन टेबल एक मुझे आइडिया है कि साइड पे छोटा सा स्पेस है, तो देयर इज अ बलून कॉल्ड एज फोगाटी बलून. हम सबको पता होगा. तो छोटे स्पेस से मैंने फोगाटी बलून पास किया, जो कैथेटर, फिर डिस्टली मैंने उसके आगे जाके ओपन किया और उसको पुल बैक किया. देन आई लॉज दैट इन द रिजिड ब्रोंकोस्कोप बैरल एंड रिमूव द एंटायर असेंबली. सो ये केस है इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजी पुशिंग द लिमिट्स. ये भी ऑन टेबल आइडिया आया क्या करना चाहिए. ऑन टेबल मतलब बिफोर ओटी यू गेट अ कॉल एट 3:30-4 AM in the morning from nearby ICU. Fortis is just adjacent to my home. कि पेशेंट इज ब्रेथलेस. 10 दिन पहले उसका सीटी हुआ था. इट लुक्स टू बी सीए इसोफेगस गोइंग इनसाइड द एयरवे. ही इज नॉट एबल टू ब्रीथ. कंटिन्यूस एनआईवी लग रहा है, वो लेट नहीं पा रहे हैं. एनआईवी निकाले तो एकदम स्ट्राइडर एंड पेशेंट इज गेटिंग डिसैचुरेटेड. बट एक टाइम पे जब लंग कैंसर लेबल होते ही आदमी का लाइफ 9 months होता था, बेस्ट केस सिनेरियो. नाउ दैट हैज इवन एक्सटेंडेड टू 10 years, प्रोवाइडेड you are a suitable candidate for the targeted therapy. दिन रात दौड़ती इस दुनिया में, क्या तुम्हें अपनी परवाह भी है? औरों की खुशी में खुश हो तुम, क्या इससे ज्यादा कुछ चाह भी है? नम आंखों की मुस्कान हो तब त्याग
हक की पहचान हो, उम्मीदें हो सबकी दिलासे हो तुम। खुदा तो नहीं पर खुदा से हो तुम, खुदा तो नहीं पर खुदा से हो तुम। I'll really tell you that this has impacted me a lot. While seeing the patient, we should always be empathetic with them. This is what I have learned today. And I really, from today onwards, the patients, while dealing with the patients, we should be very, very calm, composed, and apart from medicine, we have to give them something which is beyond medicine, that yes, सब कुछ ठीक हो जाएगा. So being empathetic with them, this is what I have learned today. Thank you. Importance of this conference is that it changes my mind also. In our conference usually the food is afterwards, here the food is before. So जैसा अन्न वैसा मन. तो हमने पवित्र सात्विक खाना खाने के बाद हम कॉन्फ्रेंस में आए तो हमारा आधा 50% मन तो बदल ही हो गया. वैसे विचार, ऐसे शुद्ध विचार, पवित्र विचार से हमारा जो ईगो है वो बिल्कुल जीरो हो जाता है. हमको मालूम पड़ता है कि ईश्वर हमारे साथ काम करता है, ईश्वर मेरे साथ काम करता है और मैं ईश्वर के लिए काम करता हूँ. ये समझ से मेरा ईगो तो बिल्कुल कम ही हो गया और नर्म हो जाता है और हर चीज़ में सक्सेस भी मिलती है तो भी भगवान का है. Today, on the occasion of Doctor's Day, Brahma Kumari Center has given us a regenerating program. We are very happy to attend this program. The Brahma Kumari's program has really helped all doctors to maintain their spiritual health, and we are really thankful. तो डॉक्टरों का भी केयर कैसे किया जाए, बिकॉज दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, और उनको कैसे केयर किया जाए जो हमको यहाँ पर सीखने को मिला, जो हमारे निकुंज भाई जी ने बताया, शकु दीदी ने बताया और विष्णु मैन ने मेडिटेशन कराया, वो सबसे एक अलग ही अनुभव आज यहाँ पर मुझे हुआ है. और मैं समझता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम अगर ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर अटेंड करेंगे तो उनको भी बहुत फ़ायदा होगा उनकी प्रोफेशनल लाइफ में, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ में हमारी मेडिकल की जो प्रोफेशनल लाइफ है वो आजकल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल है और बैलेंस रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बिकॉज ऑफ वर्कलोड. तो अगर ये चीज़ हमारे जीवन में आ जाती है, भगवान ने हमको 24 घंटा दिया है, उसमें अगर आधा घंटा भी यहाँ से जो हमने सीखा उसको हम अगर इम्प्लीमेंट करते हैं अपने डेली रूटीन में तो मैं समझता हूँ उससे बहुत ही फायदा होगा. मला आज इथे येऊन खूप छान वाटलं आणि खूप असं मनशांती मिळाली. मी पहिल्यांदाच ब्रह्मकुमारीचं पहिलं लेक्चर अटेंड केलं, पण आय एम रिअली व्हेरी हॅपी आणि खूप पीसफुल वाटलं आणि मी आता नक्कीच माउंट आबूला एकदा तरी जाणार.